Hello everyone, welcome back to my channel and my name is Simran. We are going to review some Reddit stories and I will give my opinions and you can also give your opinions in the comment section. So let's dig into this one. Unable to understand why my wife, female 38, still keeps Karwa Chauth Vrat for me even though she has cheated on me, male 40, and is in relationship with some other married men. That is fucked up. I am a 40 years old male. Got to know 2 years back that my wife was having a extramarital affair with her boss. I was devastated and heartbroken at the beginning, but later when I started coping up with the situation, I realized that I will never be able to love her the way I always did. And I offered her to take divorce on mutual consent, but she refused, saying our kid will go through a lot of trauma. Oh, Okay, so this happens. Divorce is divorce इतना common नहीं है. It's not that common in India. There are so many things around it. बच्चे हैं, family है, society है. It is difficult. And also, this is true. Kids go through a lot of trauma, and now she's saying that divorce लेने से our kid will go through a lot of trauma. Then why did you do that? मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या? दूसरे बंदे को पता चलेगा यार. झूठ के पैर नहीं होते हैं, पता चल जाता है. इफ़ यू आर चीटिंग ऑन योर पार्टनर, आज नहीं तो कल पता चल जाता है गाइस. ट्रस्ट में पता चल जाता है. सो ये पहले सोचना चाहिए चीटिंग से पहले कि बच्चे को कितना ट्रॉमेटाइज फील होगा. वाले बंदे की हालत तो देखो भाई, वो थोड़ी ना रहेगा तुम्हारे साथ, और अगर रहेगा भी तो उसका मेंटल सिचुएशन कैसा होगा कि वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है एंड ही नोज कि शी हैज़ चीटेड ऑन हिम बट स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग दैट रिलेशनशिप. दैट इज़ फक्ड अप. मेंटली ना ख़राब कर सकता है किसी का भी दिमाग. मूविंग ऑन. So we have decided to stay married for sake of our daughter. No, that's, I mean, I don't know. Who am I to say? क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन है, बट इट वुड रियली अफेक्ट योर मेंटल पीस. क्योंकि तुम ऐसे बंदे के साथ रह रहे हो जो तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ चुका है. तुम्हारी बुनियाद जो होती है रिलेशनशिप की, विच इज़ ट्रस्ट, वो ही ख़त्म हो चुकी है. तो तुम खुश नहीं रह पाओगे. और अगर तुम खुश अचीव भी कर लिया ना वो टाइम कि हाँ चल ठीक है, टाइम हील्स एवरीथिंग, और कर लिया अचीव कि नाउ वी आर हैप्पी, देन एज आई टोल्ड यू, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. तो कुछ ना कुछ इट विल कम बैक इन सम वे दैट यू वोंट बी एबल टू बी दैट हैप्पी. एंड दैट्स वाई यू आर हेयर ना. तभी तुमने रेडिट पे डाला है, बिकॉज यही प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है करवा चौथ वाली, दैट शी इज़ कीपिंग द करवा चौथ. तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. So as I told you guys, if you're not happy in a relationship, not happy in a marriage, then get that divorce. Don't let society, kid, or anything stop you. Honestly. So we have decided to stay married for sake of our daughter, and over a period of time, I've accepted the fate of my marriage and moving on with my life. I'm so sorry, but I can't. But I am unable to understand why does she always has to keep Karwa Chauth for me when she's clearly in love with someone else. Why does she needs to pretend that all is well in her married life? We stay in different cities now and she always video calls me to open her fast. I just feel disgusted by the way she behaves, as if I am her one and only. I'm not sure if I'm looking for any suggestions or just want to let this off my head. But since it was Karwa Chauth, so just thought of sharing. The fact that you guys are living, I mean you're living separately is good. ये सही है, बिकॉज साथ तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा. एंड इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ योर डॉटर और योर फैमिली और द सोसाइटी, देन इट्स बेटर टू डू इट लाइक दिस. My bet is that she is doing it because of the society and the family and the daughter. Because you, अगर ये घर तुमने डिस्कस करा है दैट यू विल स्टे टुगेदर, देन डेफिनेटली ये बाकी लोगों तक नहीं पहुंची है बात दैट शी हैज़ चीटेड ऑन यू, या फिर यू गाइज आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप और यू वर लुकिंग फॉर द डिवोर्स. सो दैट्स वाई टू कीप एवरीथिंग इंटैक्ट एंड सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो, वैसा ही रहे और सब कुछ वैसा चलता रहे. दैट्स वाई शी इज़ डूइंग दिस करवा चौथ वाला थिंग. बिकॉज नाउ इफ़ शी स्टॉप डूइंग दिस तो देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट वाई यू आर नॉट डूइंग इट, क्या क्या हुआ है, वैसे यू गाइज लिव सेपरेटली.
तो ये वाले क्वेश्चंस आएंगे. तो दैट्स वाई शी इज़ डूइंग इट ऑनेस्टली. बट इफ़ दिस वीडियो गोज़ टू यू, अगर आप तक पहुँचती है, तो माई सजेशन वुड बी, ठीक है, कीप द थिंग्स नॉर्मल, टॉक टू हर अबाउट डिवोर्स इफ पॉसिबल, अगर मन है, इट्स इन योर माइंड और हार्ट. Wanna keep your focus on your work, and if possible and if you want to do it, then try out some relationships, go on dates, thoda have fun, and see that life. Maybe वो वाली लाइफ मोटिवेट करे डिवोर्स लेने के लिए. आई एम नॉट encouraging divorces in this video, but I am definitely encouraging someone जो खुश नहीं है शादी में, नहीं है खुश, एंड इफ़ देयर पार्टनर हैज़ चीटेड एंड दे कांट मूव ऑन, देन आई वुड डेफिनेटली इनकरेज डिवोर्सेस. बिकॉज बहुत मुश्किल है रहना विद समवन जिसने चीट करा हो, या फिर एक अनहैप्पी शादी में रहना ऑल टुगेदर. सो दैट्स इट, एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर ओपिनियंस, या फिर मेरी कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है ओपिनियन तुमसे, या कुछ ना कुछ हो रहा है. लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन, in my comment section, sorry, in your toodles.